ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਜਲਦੀ ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਬੈਚ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਟੈਟ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ PS ਟੈਟ 1, PS ਟੈਟ 2 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ C ਟੈਟ 1 ਅਤੇ C ਟੈਟ 2। ਸੋ PS ਟੈਟ 1 ਐਂਡ PS ਟੈਟ 2, C ਟੈਟ 1 ਅਤੇ C ਟੈਟ 2 ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਚ ਲਾਂਚ ਕਰਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ PS ਟੈਟ ਪੇਪਰ 2 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ PS ਟੈਟ 2। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਣੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਟੀਚਰ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ PS ਟੈਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਆਉਣ ਘੱਟ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 82 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ 90 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਨਾ 82 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਰਹੂਗਾ 110+। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ 110 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਊਗਾ 110। ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਪੇਪਰ ਹੀ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯਾਰ B.Ed ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, B.Ed ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, SS ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਤਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ B.Ed ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ +2 ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ PS ਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 1 ਦਾ 2, ਜੋ PS ਟੈਟ 2 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ 150 ਮਾਰਕ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੇਪਰ 150 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਹ 150 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1 ਨੰਬਰ ਦਾ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ 150 ਦੇ 150 ਇੱਕੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। 2 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 30 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ 60 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ B.Ed ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, 2 SST ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ।
सो कहने का भाव इदां गा अपना कि ਜਿਹੜੇ सब्जैक्ट के कॉम्बीनेशन विच आपां B.Ed कर रहे हैं वो सब्जैक्ट आपां चूज़ करना हुंदा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो ਜਿਹੜੇ अपने आह 90 नंबर हो गए 30 ते 60 90 नंबर हो गए ना, आ 90 सारे वास्ते कॉमन होंदे आ 90 नंबर सारे वास्ते कॉमन होंदे आ। लेकिन इस तो बाद ਜਿਹੜੇ आ मैं तुहानूं फील्डां लिखियां ना, इन्हां दे विचों जिहड़ा बच्चा जिहड़ा सब्जैक्ट कर रहा आपां वो चूज़ करना हुंदा ते उस दे पर्टिकुलर सब्जैक्ट दे 60 क्वेश्चन आउंदे हुंदे आ। जिवें आपां एग्जाम्पल SST दी लैने आ, SST आपां पढ़ांगे सो 90 ये कॉमन हो गए, 90 प्लस SST वाले बच्चों नूं 60 क्वेश्चन तुहाडे SST दे आउणगे। सो 90 प्लस 60 150 नंबर का तुहानूं पेपर आउणा। ये अपना एक तरह का कह सकते हैं कि ढांचा गा जिहड़ा तुहानूं PSTET पूछा जाऊगा। सो एक होर दसदा मैं तुहानूं जिहड़ी अपनी लैंगुएज ने जो इंग्लिश ते पंजाबी लैंगुएज आ, इंग्लिश ते पंजाबी लैंगुएज दे विच तुहानूं 15 नंबर दे 15 मतलब कि इंग्लिश दे विच भी 15 दे पंजाबी दे विच भी 15 दे, ठीक है। सो कहने का भाव 15 दे इंग्लिश दे विच ते 15 दे पंजाबी दे विच तुहानूं 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, एक तुहानूं अनडिठा पैरा पूछे जाता है, एक तुहानूं पोएम पूछी जाती है। सो ये 15 नंबर के विचों ईजीली सारे बच्चे इंग्लिश के विचों तो 15 चों 10 कह सकते हैं आपां, लेकिन पंजाबी के विचों तो 15 के विचों 15 ही लै जाते हैं बच्चे, कोई ज़्यादा टफ नहीं होंगे, समझ गए। सो नैक्सट आपां जो आपां अज पढ़ना आपां SST पढ़ांगे। सो बच्चों अज फस्ट डे आपां सिलेबस नहीं करांगे, लेकिन आपां जिहड़े सिलेबस सॉरी आपां मतलब कि अज कुछ पढ़ना नहीं हैगा, पर आपां जो SST का व्यू ओवरव्यू देखांगे कि आपां SST दे विच किहड़ियां चीज़ां पढ़नियां ने। आपां कोई भी गेम खेडदे आंगे, लाइक क्रिकेट खेडदे आ, फुटबॉल ला लो, क्रिकेट कबड्डी कोई भी चीज़ ला लो, आपां कोई भी गेम खेडदे आ, अगर आपां नूं उस गेम के रूल ही ना पता होणगे तां आपां गेम किवें खेडांगे, ठीक है। जिद्दां कह दिंदे आपां फुटबॉल ला लो, आपां फुटबॉल खेडन लागे, आपां नूं फुटबॉल के रूल ही नहीं पता, आपां नूं पता ही नहीं कि फुटबॉल किवें खेडदे आ, पैरां नाल खेडदे आ जां हत्थां नाल शूट करदे आगे, जां फिर मतलब कि आपां उन्हां नूं लै के भज देंगे रगबी वांगू। सो इहदा आपां नूं रूल ही नहीं पता तो आपां खेड किवें सकदे आंगे। आपां डेफिनेटली जे रूल नहीं पता तो आपां वो चीज़ का घाचा माचा पावांगे, वह गंद ही पावांगे आपां, ठीक है। आपां इनडिसिप्लिन क्रिएट करांगे गेम दे विच। सो इदां ही आ जे तुहानूं आपां आही एग्जाम्पल आपां अपने सब्जैक्ट दे लैके चलीए, जो तुहानूं SST दे विच पता ही नहीं कि आपां किहड़ियां चीज़ां अपने वास्ते इंपॉर्टेंट है, किहड़ियां चीज़ां आपां पढ़नियां, तो आपां ओबवियसली जी गल है इह ते ही आपां गंद पावांगे। उही सेम मतलब कि फुटबॉल वाली एग्जाम्पल आपां इस ते अपलाई करिए तां इहदा भी आपां जलूस ही कड्डांगे। सो इस कहण दा भाव इदां मेरा कि आपां सिलेबस शुरू करन तो पहलां एक बारी ओवरव्यू करदे हां कि आपां पढ़ना की आ, सिलेबस की आ अपना। सो जो आप SST पढ़ना ना, SST दे विच आपां सब तो पहला पढ़ांगे 2 मिनट यार, सो SST दे विच आपां सब तो पहला पढ़ना जिहड़ा सब्जैक्ट हिस्टरी। इतिहास। सो सैकेंड ते आपां पढ़ांगे पॉलिटिकल साइंस, जिन्हों कह दें कि आप राजनीतिक। सो थर्ड पढ़ांगे आपां जियोग्राफी, जिन्हों कह दें आप भूगोल। सो ये अपने 3 सब्जैक्ट होंगे जिहदी सारे नाल ज़्यादा वेटेज रहिंदी है पेपर दे विच। सो इन्हां चीज़ों नूं आपां पहलां मेन टारगेट करांगे। सो 1 बाय 1 देखते हैं आपां। इतिहास दे विच आपां किहड़ियां चीज़ां पढ़ांगे। सो हिस्टरी के उपर जो अपना फोकस रहना वो किहड़ियां चीज़ों से रहना। हिस्टरी के उपर अपना 3 चीज़ों से मेन फोकस रहना गा, जिहड़ियां कि हरेक मतलब कि अपने जिहड़े हिस्टोरीयन होए गए उन्होंने डिवाइड किए हुए है। एशियंट हिस्टरी, एशियंट का हिस्टरी का मतलब की हुंदा प्राचीन इतिहास। मिडेवल, मिडेवल का मतलब होंदा मध्यकालीन। तो थर्ड आप पढ़ांगे मॉडर्न।
सो मॉडर्न का मतलब की होंदा गा आपां आधुनिक। ओके सो हिस्टरी दे विच आपां तीन चीज़ों को कवर करांगे, एशियंट हिस्टरी, मिडेवल हिस्टरी ते मॉडर्न हिस्टरी। सो एशियंट हिस्टरी किहड़ी हुंदी हैगी, एशियंट हिस्टरी दे विच आपां पढ़ांगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, बुद्धिज़म, जैनिज़म, अपने जिहड़े राजे महाराजे आए सीगे, चंद्रगुप्त मौर्य होरी है ना, ये सारियां चीज़ां आपां जिहड़े अपने उस टाइम अपने जिहड़े की कह सकते आपां उस टाइम जिहड़े अपने महान कवि होए सी उन्हां बारे भी देखांगे। कुछ क्वेश्चन पुछ लैंदे आ कि किहड़ा कवि किहड़े दरबार विचों आया, जिवें हर्षवर्धन के दरबार विच किहड़ा कवि आया सीगा, अपना मैगसनरी सीगा जिहड़ा वो कित्थों आया सीगा, किहदा राजदूत सीगा। ये सारियां चीज़ां आपां एशियंट हिस्टरी दे विच कवर करांगे। सो जिहड़ी मिडेवल हिस्टरी है, सो मिडेवल हिस्टरी दे विच की पढ़ना, मिडेवल हिस्टरी दे विच आपां पढ़ना गा अपने जिहड़े तुर्क तो अफगान तो जिहड़े अपने एडवेंचर आए सी, जिहड़े अपने कि अटैक किया सी, जिन्हां ने हमलावर जिन्हां कह दिंदे आपां। सो वो पढ़ांगे जिहड़े 712 दे विच कासिम आया सीगा। 712 दे विच कासिम आया सी। कासिम तो लैके ये अपनी 1800 तक अप्रोक्सीमेटली जो तक अपने मुगल चलते है, लीडर मुगल चलते हैं, उद तक अपनी मिडेवल हिस्टरी पढ़ी जाती है। लेकिन आपां कह दिंदे हैगे चलो छो आप कह दें कि हाँ भी आप 700 रफ कर लिए थोड़ा जहा थोड़ा फिर क्लीयर आऊगा कि 712 दे विच 712 दे विच अपनी जी मिडेवल हिस्टरी है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है 712 तो लैके कदों तक चलती है ये 712 टू 1800 कह दें आप एडी 712 तो लैके 1800 एडी तक चलती है। बिल्कुल सही है लेकिन आप इदा नहीं कह सकते कि ओनली उदों मिडेवल हिस्टरी ही चलती है क्योंकि मिडेवल हिस्टरी के नाल 1800 तो बाद अपनी मॉडर्न हिस्टरी भी शुरू हो जाती है 1600 के 1600 एडी 1600 एडी मतलब कि जदों अपने कौन आ जाते हैं कि अंग्रेज़ आ जाते हैं अपने ब्रिटिश जदों इंडिया के विच आ जाते हैं उत्थों अपनी मॉडर्न हिस्टरी शुरू हो जाती है। लेकिन कहने का भाव की अपना कि मॉडर्न हिस्टरी दे विच ही अपनी मिडेवल हिस्टरी दे विच ही अपनी मॉडर्न हिस्टरी स्टार्ट हो जाती है जो इहदा टाइम पीरियड है। चलनियाँ अलग अलग चीज़ां पैरलल नहीं चलदियां पैरलल कहने का भाव है कि ये नाल ये पैरलल चलूगी लेकिन मिक्सअप नहीं होंदा। इधर लीडर मुगल चलणगे इधरों अपने अंग्रेज़ इंडिया के विच शुरू हो जाएंगे। सो वो भी देखांगे कि जदों अपने अंग्रेज़ आए उदों किहड़ा मुगल राजा सीगा कि जां किहड़े मुगल राजे ने फरमान इशू करिया। ये सारियां चीज़ां आपां मिडेवल हिस्टरी दे विच पढ़ांगे। सो नैक्सट आ गया अपना आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्टरी। सो मॉडर्न हिस्टरी दे विच की कवर करांगे आप मॉडर्न हिस्टरी दे विच देखांगे कि जिहड़े अपने इंडिया दे विच अपने जिहड़े अंग्रेज़ आए सी एडवेंट ऑफ यूरोपियन मतलब कि एडवेंट का मतलब होंदा आगमन जी आया जिन्होंने आप कह दें है। सो एडवेंट ऑफ यूरोपियन के यूरोपियन इंडिया के विच किवें आए उत्थों लैके आप देखांगे सारा अपना इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ओके सो INC इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल अपनी चलूगी जिन्होंने कह दें आप नैशनल मूवमेंट। नैशनल फ्रीडम मूवमेंट जिन्होंने आप कह दें सारी चलू सब तो इंपॉर्टेंट तुहाडा यही इरा होगा। 100% यार ये क्वेश्चन आते हैं 3 तो 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्टरी के विचों ही तुहानूं कवर होंदे आ। सो ये आप हिस्टरी पढ़ांगे हिस्टरी का ओवरव्यू देख लिया। सो नैक्सट आप चलते हैं जियोग्राफी भूगोल जिन्हों कह दें आप। सो जियोग्राफी के की कुछ पढ़ांगे जियोग्राफी के आप मेनली 2 टर्मां करांगे और 2 टर्मां दे विच ही तुहाडा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जू। सो 2 टर्मां किहड़ियां आईयां। सो फस्ट साडी हो जाती है कॉस्मोलॉजी जिन्हों आप कह दें ब्रह्मंड विज्ञान। सो नैक्सट तुहाडी आप देखांगे एक ब्रह्मंड विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी। सो जियोमॉर्फोलॉजी की कह दें आप पंजाबी दे विच
भूरूप विज्ञान। सो हुण मतलब समझ लो ब्रह्मंड तो सानू क्लीयर हो गया यूनीवर्स। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का मतलब होंदा द स्टडी ऑफ यूनीवर्स, द स्टडी ऑफ ब्रह्मंड। तो ब्रह्मंड बारे पढ़ांगे कि ब्रह्मंड का किवें मतलब कि आविष्कार होया, ब्रह्मंड किवें बनया, नॉट आविष्कार ब्रह्मंड किवें बनया, यह किवें मतलब कि कह सकते हैं कि थ्योरियां दित्तियां हुई एग्जैक्टली किसी नहीं पता, लेकिन सारे नाल ज़्यादा प्रूवेबल थ्योरी है जी बिग बैंग थ्योरी आ, वो सारा कुछ आप ये पढ़ांगे। जोड़े अपने की प्लैनेट्स ने वो पहला मतलब कि सारे एक पैग्यू सीगे वो सारा कुछ टुट के जोड़े बने अपने जोड़े कॉन्टीनेंट, वो सारा कुछ आप पढ़ांगे जियोमॉर्फोलॉजी दे विच, ठीक है। सो ये सारे नाल ज़्यादा क्वेश्चन जो फ्रेम होंदा पोजीशनां दे विच जिहड़े अपने प्लैनेट्स दीयां पोजीशनां हैगियां कि किहड़ा प्लैनेट कित्थे हैगा, जां फिर अपने साइज़ वाइज भी पुछ लैंदे हैगे, जां फिर अपने सीरियल वाइज भी पुछ लैंदे आ, रैड प्लैनेट किहड़ा हैगा, ब्लू प्लैनेट किहड़ा हैगा, अपना अर्थ दी सिस्टम किहनूं कहा जांदा, ये सारा कुछ आपां कॉस्मोलॉजी दे विच देखांगे। सीजनस किवें बनदियां हैगियां, डे एंड नाइट किवें बनदे हैगे, साल किवें बनदे हैगे, ये सारा कुछ कवर अपना कॉस्मोलॉजी दे विच होऊगा। सो सैकेंड अपना ये नाल ही जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा हो गया भू रूप विज्ञान, भू रूप विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी। ये की पढ़ांगे जो भी अपने प्लैनेट के उपर अपना आवर प्लैनेट अपना प्लैनेट किहड़ा अर्थ, सो अर्थ के उत्ते जिहड़ियां भी मूवमेंट हुंदियां ने, मूवमेंट का मतलब वॉल्कैनो, अर्थक्विक, अपना वॉल्कैनो, अर्थक्विक, माउंटेन्स, रिवर्स, या फिर अपने जोड़े प्लेटूज हो गए, ठीक है। तो सारा कुछ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर के 100% क्वेश्चन अपना एक ना एक क्वेश्चन 100% छपदा है कि ओजोन लेयर किहड़े एटमोसफेयर की किहड़ी लेयर दे विच हैगी, या फिर अपने जोड़े रेडियो हो गए वो किहड़ी लेयर दे विच हैगे, ठीक है। सैटेलाइट किहड़ियां लेयर दे विच ने, सारा कुछ आप जियोमॉर्फोलॉजी दे विच कवर करांगे। सो थर्ड मतलब कि इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं हैगा, लेकिन फिर भी चल आप माड़ा मोटा चानना पा लांगे क्लाइमेटलॉजी। सो क्लाइमेटलॉजी, क्लाइमेट के नाम तो थोनों क्लीयर है कि स्टडी ऑफ क्लाइमेट, स्टडी ऑफ क्लाइमेट के पढ़ाई करांगे आप क्लाइमेट बारे, जलवायु बारे, अपना जोड़ा इंडिया का पंजाब का जलवायु आप बारे देखांगे। जिहड़े कि वैसटर्न डिस्टरबेंस होंदियां 100% यार अपना प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है कि वैसटर्न जिहड़ियां डिस्टरबेंस होंदियां वो किहड़े पासों आउंदियां हैं, की कुछ ये सारा कुछ अपना क्लाइमेटलॉजी दे विच पढ़ांगे। सो जिहड़ा ये तुहाडा जी आपां जियोग्राफी का पोर्शन मैं तुहानूं डिस्कस करता। सो नैक्सट अपना रह गया पॉलिटिकल साइंस। सो पॉलिटिकल साइंस दे विच आपां इक्को चीज़ पढ़ांगे जिन्हों आप कह दें कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इस दे विच आपां ओनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ांगे। सो जिहड़े भी आपां नूं सिलेबस दे विचों या फिर कोई भी पेपर दे विचों क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेम होंदे, जिहड़े भी क्वेश्चन सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे विचों ही फ्रेम होंदे आ, ठीक है। लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट किहड़ी होगी जिहड़ी कि पिंडां दे विच चलदियां हैगियां, जिन्हों आप पंचायत भी कह दिंदे हैगे। होर किहड़े टॉपिक हो गए अपने डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स। सो ये नाल ही आप होर किहड़े टॉपिक हो रहे अपने जिहड़े आपां नूं सिलेबस दे विच मैंशन ने, पार्लीमेंट, सो पार्लीमेंट दे विच जे उन्होंने पार्लीमेंट मैंशन करता, पार्लीमेंट तीन चीज़ों मिला के बनता, वो तिन्ने ही भी आप देखांगे किहड़ी चीज़ों मिला के बनता अपना पार्लीमेंट। लोक सभा, राज्य सभा ते एक अपना प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन तिना चीज़ों मिला के अपना जिहड़ा इंडिया का पार्लीमेंट बनता। कहने का भाव ये सारे टॉपिक ने जिहड़े आपां नूं सिलेबस दे विच मैंशन ने ते पेपर दे विच पुछे जांदे आ, वो सारे दे सारे अपने जिहड़े टॉपिक ने वो बस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे विच ही कवर होंदे हैं। अपने संविधान, भारत दे संविधान दे विच ही वो कवर होंदे ने, क्योंकि जो भी चीज़ां अपना जिवें भी अपना देश चल रहा है, जिवें भी डेमोक्रेसी चल रही है, कोई भी गौरमेंट बनती है, हाई कोर्ट वर्क करता, सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है, पार्लीमेंट वर्क करता, ये सारे का सारा अपनी जिहड़ी
ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਹੈਡੇਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਛ ਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਨਰਲਸ, ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਨਰਲਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਇਹ 100% ਯਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਨਗਣਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ 2011 ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ PSTET ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਓ ਕਿ ਸਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਬਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਬਸ ਖੱਦਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੱਚਿਓ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।